ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیسیفک اوشن سے ایک ایسا راستہ، ایک ایسا گیٹ کھل چکا ہے جو کہ پورٹل کا کام کر رہا ہے کچھ مانسٹرز کے لیے۔ اصل میں یہ مانسٹرز ایلینز کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں جو کہ دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ان مانسٹرز کا نام کائجو ہے جس کا مطلب ہے جائنٹ مانسٹر، اور یہ کائجو اسی پورٹل میں سے ہی نکل کر دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں۔ شروع میں اس پورٹل سے صرف ایک کائجو باہر آیا جس سے کہ سبھی انسان بوکھلا گئے، ہر طرف موت کا کھیل شروع ہو گیا اور شہر پر شہر تباہ ہونے لگے۔ ایسے میں کافی کوششوں کے بعد آرمی اس کائجو کو مارنے میں کامیاب تو ہو جاتی ہے، مگر یہ اس تباہی کا اینڈ نہیں تھا، کیونکہ کچھ مہینوں کے بعد ایک اور کائجو اسی پورٹل کے ذریعے ارتھ پر آتا ہے اور دوبارہ سے موت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب اس تباہی کو دیکھ کر سبھی سمجھ گئے کہ اگر سبھی انسان ساتھ مل کر اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کریں گے تو یہ تباہی روکنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے سبھی کنٹریز مل کر اب اس کا حل سوچنے لگی، جس سے کہ سبھی اس سولوشن پر پہنچ پائے کہ اگر انہیں اس مانسٹر کو ہرانا ہے تو اس کے لیے انہیں بھی ایک بیسٹ کی ضرورت پڑے گی۔ جس کے بعد سبھی سائنٹسٹ ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے بعد اینڈ میں وہ ایک بہت بڑے روبوٹ کو تیار کرتے ہیں جو کہ اس مانسٹر سے کئی گنا بڑا اور پاورفل ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا پروسیس بھی اتنا ہی ٹیکنیکل تھا۔ اس روبوٹ کو مینولی چلانا پڑتا ہے، اور جب ایک پائلٹ کو اس روبوٹ کو چلانے دیا گیا تو وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا دماغ اتنی پاورفل ٹیکنالوجی کو کنٹرول نہیں کر سکا، جس کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب اس روبوٹ کو 2 پائلٹ چلائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں پائلٹس کے دماغ آپس میں اچھی طرح سے کوآرڈینیٹ کریں۔ خیر یہ پروسیس شروع کیا جاتا ہے اور روبوٹس کو کائجو کے اگینسٹ میدان میں اتارا جاتا ہے، اور یہ روبوٹس اپنا کام بہت ہی اچھے سے پرفارم کرتے ہیں اور کائجو کا خاتمہ کر دیتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ابھی بھی رکا نہیں ہے، اور کچھ ٹائم کے بعد اور بھی کائجوز ارتھ پر آتے رہے، لیکن اب انسانوں میں ان کا وہ خوف نہیں ہے کیونکہ اب ان کے پاس روبوٹس ہیں جس کی مدد سے وہ ان مانسٹرز کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اب ایسے ہی وقت گزرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سب کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی اس پورٹل سے ایک کریچرز باہر آتے ہیں، مگر اب انسان ان سے لڑنا سیکھ چکے ہیں اور انہیں ہرانا بھی۔ ہیومنز کے لیے اب یہ سب نارمل بن چکا ہے، لیکن اسی بیچ ایک دن ریسرچ فیسلٹی میں الارم بجتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس بار جو کائجو ارتھ پر آیا ہے وہ کیٹیگری 3 کا کائجو ہے، یعنی کہ یہ ایلینز بھی موڈیفائی ہو رہے ہیں اور ہر بار مزید طاقتور بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں 2 بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ٹوینز ہیں، اور یہ دونوں ہی روبوٹ کے پائلٹس ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ینسی اور دوسرے کا نام رائلی ہے۔ اب اس مشن کے لیے ان دونوں کو بھیجا جانا تھا۔ اپنے سوٹس پہننے کے بعد یہ روبوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے دماغ کو سنک کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس روبوٹ کو چلا سکیں، جس کے بعد اب اپنے اس ہیوج روبوٹ کو لے کر یہ سمندر میں اتر جاتے ہیں۔ انہیں سمندر میں ایک شپ نظر آتی ہے اور سب سے پہلے یہ اسے بچاتے ہیں، جس کے بعد یہ کائجو سے لڑتے ہیں، اور اس بار اس کو ہرانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی کائجو سے یہ لڑ رہے تھے انہیں آسانی سے یہ ہرا دیتے تھے، مگر اس کو ہرانا آسان کام نہیں تھا۔ فائٹ کے دوران وہ اسے ایک الیکٹرک شاک دیتے ہیں جس سے کہ کائجو دور جا کر گرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کائجو مر گیا، مگر تبھی انہیں کنٹرول روم سے آرڈر ملتا ہے کہ کائجو زندہ ہے، وہ واپس آ جائیں کیونکہ شاید وہ فی الحال اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ مگر یہ دونوں نہیں مانتے اور کائجو سے لڑتے ہیں، مگر کائجو بہت اسٹرانگ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے روبوٹ کا لیفٹ ہینڈ کاٹ دیتا ہے، جس کے بعد وہ روبوٹ کے اس ایریا کو جس میں کہ یہ دونوں بھائی موجود ہیں اس کو توڑ کر کینزی کو باہر نکال کر اسے مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر رائلی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بھی اس کائجو کو مار دیتا ہے، مگر وہ اپنے بھائی کی موت کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ خیر اس واقعے کو اب 5 سال گزر جاتے ہیں اور آرمی میٹنگ سے ہم جان پاتے ہیں کہ انسانوں کے لیے اب ان کائجو سے لڑنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہر بار وہ زیادہ پاورفل ہو کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو جو فنڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پروجیکٹ کی ایکٹیویٹی سے خوش نہیں تھے۔ وہ مارشل کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے سارے روبوٹس ہانگ کانگ لے جاؤ، اگلے 8 مہینوں تک ہم تمہیں فنڈنگ کرتے رہیں گے جب تک کہ کوسٹل وال تیار نہ ہو جائے۔ اصل میں سمندر کی ارد گرد ایک بہت بڑی وال تیار کی جا رہی تھی جو اگلے 8 مہینوں میں تیار ہو جائے گی تاکہ کہ کائجو دیوار کے اس طرف نہ آ سکے، لیکن مارشل اس بات سے سہمت نہیں تھے۔ وہ اس پروگرام کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اپنی ایک الگ ٹیم بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کسی طرح سے رائلی تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ پوری طرح سے اس پروگرام کو چھوڑ چکا ہے
क्योंकि जब से उसके भाई की मौत हुई है उसने इस प्रोग्राम को छोड़ दिया है। वो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। मार्शल उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। मैंने जितने भी रोबोट बनाए हैं उसमें से एक रोबोट ऐसा था जिसको सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई चला सकते थे और मुझे एक पायलट की जरूरत है। तो राइली साफ साफ मना कर देता है, पर मार्शल कहते हैं कि तुम्हें ये करना होगा क्योंकि पूरी दुनिया की जान खतरे में है। इसीलिए राइली मान जाता है और वो मार्शल के साथ हांगकांग जाता है जहाँ पर ये सब सीक्रेटली काम करते हैं। अब सिर्फ 4 ही रोबोट्स बचे हैं। मार्शल बताता है कि वो ओशन के उस पार हमला करने वाले हैं जहाँ से वो काइजू निकलता है। राइली कहता है कि हम पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं लेकिन उस दरार के अंदर तक जाना बहुत ही मुश्किल है। तब मार्शल कहता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है, तुम बस तैयार रहो। दूसरी तरफ मार्शल की अडॉप्टेड बेटी माको को दिखाया जाता है जो कि पूरे प्रोग्राम की डायरेक्टर है। माको मार्शल से कहती है कि राइली के साथ वो भी पायलट बनना चाहती है ताकि वो भी रोबोट का दिमाग कंट्रोल करके उस काइजू के साथ लड़ सके, पर मार्शल पूरी तरह से इसके लिए मना कर देता है। दरअसल काइजू ने ही माको के पेरेंट्स को मारा था। मार्शल कहते हैं कि बदला एक जख्म होता है और जख्म होते हुए कोई भी दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो माको को मना कर देता है। अब राइली का दूसरा पायलट चुनना था और ये प्रोसेस अब शुरू हो जाता है। अब एक एक आदमी को राइली से फाइट का कहा जाता है। राइली सभी को एक ही बार में हरा देता है और इसके बाद माको उससे लड़ने आती है। माको और राइली एक ही तरह के फाइटर्स होते हैं, इसीलिए अब फैसला किया जाता है कि राइली का नया पायलट यानी कि को पायलट अब और कोई नहीं बल्कि माको ही होगी। इन दोनों को टेस्टिंग के लिए इनके रोबोट्स के अंदर डाला जाता है जहाँ पर इन दोनों के दिमाग को जोड़ दिया जाता है। पर राइली कुछ वक्त के लिए उस पल में खो जाता है जहाँ पर काइजू ने उसके भाई को मारा था, इसीलिए उसका कनेक्शन माको से टूट जाता है। माको भी अपने बचपन के उस पल में खो जाती है जिस पल में काइजू ने उसके माँ बाप को मारा था। राइली भी ये सब कुछ देख पा रहा था, तो राइली उसे समझाता है कि ये सब एक वहम है, पर माको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी वो रोबोट में जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ पर वो प्लाज्मा कैनाइन को एक्टिवेट कर देती है और अगर ये चल गया तो वहाँ पर सब के सब लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर हर जगह अफरा तफरी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि माको वो बटन को दबाती पावर कनेक्शन ऑफ कर दिया जाता है जिससे कि रोबोट भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद मार्शल माको को पायलट की जॉब से निकाल देते हैं। यहाँ पर अभी उस दूसरे साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम न्यूटन होता है। वो अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से, जिस दिमाग को इन्होंने अभी तक केमिकल्स में रखा होता है, उससे जोड़ता है और ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि 2 पायलट के दिमाग जुड़ते हैं। एक दिमाग को कंट्रोल किया जाता है और दूसरा दिमाग उसके साथ जुड़ता है। जब न्यूटन अपने दिमाग को उस काइजू के दिमाग से जोड़ता है तो उससे उसे वो जगह दिखाई देती है जहाँ से ये सब काइजू आते हैं और उसे कुछ एलियंस भी नजर आते हैं जो कि ये सब काइजू बना रहे होते हैं। तभी न्यूटन के पास मार्शल आता है और न्यूटन मार्शल से कहते हैं कि अब से लेकर 4 कैटेगरी के काइजू जो कि यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं, ये सब सिर्फ इस जगह को साफ करने के लिए आए थे। अब इसके बाद जो काइजू आएंगे वो इंसानों को मारने के लिए आएंगे। ये जमीन पर पहले भी आए थे जबकि डायनासोर्स थे और इस दुनिया का एटमॉस्फेयर इन एलियंस के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए इन एलियंस ने यहाँ से जाने का डिसाइड किया और इंतजार करते रहे। और अब जब ओजोन की कमी की वजह से अब एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स के इजाफे की वजह से इनके लिए ये एटमॉस्फेयर अब सेफ है, इसीलिए अब वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ तक कि सारे रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं। इन एलियंस का यही काम है कि वो एक एक करके हर प्लेनेट पर कब्जा करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करते हैं और दूसरे प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। मार्शल उसे कहता है कि तुम्हें काइजू के दिमाग से एक बार फिर से जुड़ना होगा ताकि हमें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। न्यूटन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये दिमाग पूरी तरह से डेड हो चुका है, इसके लिए मुझे काइजू का दूसरा दिमाग चाहिए होगा जो कि पूरी तरह से डेड ना हो। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को पता चलता है कि पैसिफिक ओशन से अब एक और काइजू निकला है जो कि कैटेगरी 4 का है और वो उनके पास अपने रोबोट्स को भेजते हैं और वो राइली को कहते हैं कि तुम यही रखोगे क्योंकि तुम्हारा कोई और पार्टनर नहीं है और वो उस रोबोट को अकेले नहीं चला सकता। अब सबसे पहले एक रोबोट काइजू से लड़ता है, लेकिन काइजू बहुत ही ताकतवर था तो इसीलिए वो उस रोबोट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसके बाद जब दूसरा रोबोट जाता है तो काइजू अपने अंदर से एक लिक्विड निकालता है और उस रोबोट पर फेंकता
देता है, जिससे कि उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि उन्होंने अपने 2 रोबोट्स खो दिए थे। और अब तीसरा रोबोट आता है जो कि काइजू पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने एयर मिसाइल से उसे मारने वाला होता है तो काइजू अपनी बॉडी से ईएमपी बाहर निकालता है, यानी कि वो अभी अपनी बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है। बल्कि इससे न सिर्फ रोबोट बल्कि इनका पूरा कंट्रोल सिस्टम तबाह हो जाता है। अब वो अपने रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए राइली कहता है कि तुम्हें अब हमें भेजना ही होगा, क्योंकि पुराने रोबोट्स की टेक्नोलॉजी अलग होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलते हैं, जबकि अब के जो न्यू रोबोट्स हैं वो डिजिटल हैं। मार्शल को अब राइली की बात माननी पड़ती है और यहाँ पर वो माँ को, जिसे वो अपनी बेटी से भी ज्यादा समझता है, वो उसे राइली का पार्टनर बना देता है। अब ये दोनों अपने रोबोट में बैठते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इनका तीसरा रोबोट है, जो कि पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब इससे पहले कि काइजू उस रोबोट के अंदर के लोगों को मारता, वहाँ पर माको और रैली आ जाते हैं। हालांकि वो जिस रोबोट में होते हैं वो काफी ही पुराना होता है, लेकिन अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है। रैली पूरी तरह से काइजू पर हावी हो जाता है, वो काइजू को मार देता है और वहीं दूसरी तरफ काइजू को दिखाया जाता है जो कि शहर की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए शहर में अफरा तफरी फैली होती है। उधर न्यूटन एक आदमी के साथ होता है जिसका नाम हैनिबल होता है। वो काइजू के ऑर्गन्स का सौदा करता है जो कि अलग अलग कामों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर न्यूटन उससे काइजू का दिमाग लेने के लिए आया था ताकि न्यूटन काइजू के दिमाग से जुड़ सके और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। जब हैनिबल को पता चलता है कि काइजू इनकी तरफ आ रहा है तो वो उससे बोलता है कि न्यूटन, जब तुम काइजू के दिमाग से जुड़े थे तो कनेक्शन एक ही साइड से नहीं हुआ था बल्कि कनेक्शन दोनों तरफ से हुआ था। जैसे कि तुम्हें उनके बारे में पता चला था, एलियंस को भी सब कुछ पता चल गया है और काइजू सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम्हें मारने के लिए आया है। जितने भी काइजू हैं और जितने भी एलियंस हैं ये सब के सब मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जो कि एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। इन सबका डीएनए भी एक ही है। अब काइजू शहर में जाता है और इससे पहले कि वो न्यूटन तक पहुंचता, वहाँ पर राइली और माको दोनों ही अपने रोबोट को लेकर आ जाते हैं और बचे हुए काइजू से लड़ते हैं। ये दोनों आपस में बहुत ही लड़ते हैं, लेकिन तभी काइजू इन्हें मुंह में पकड़कर अपने पंख खोलता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। वो इन्हें बहुत ही ऊपर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये उन्हें एटमॉस्फेयर से भी बाहर ले जाए, ये दोनों ही अपने तलवार निकालते हैं और काइजू का एक पंख काट देते हैं, जिससे कि ये दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और इस पर रैली और माको अपने रोबोट की पावर को यूज करके सेफली जमीन पर आ जाते हैं, मगर काइजू जमीन पर गिरकर मारा जाता है। उसके पास न्यूटन और हैनिबल आते हैं। न्यूटन को इसी तरह से उसका दिमाग चाहिए था, पर जैसे कि काइजू की मौत हो जाती है उसका दिमाग भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। मगर यहाँ पर उनकी किस्मत अच्छी होती है, ये काइजू प्रेग्नेंट होता है और इसके पेट से एक बच्चा निकलता है जो कि इन पर हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि वो न्यूटन को मार सके, उसकी मदर के पेट से जो अम्बिलिकल कॉर्ड निकली होती है वो उसके गले की गिर्द लिपट जाती है, जिससे कि वो काइजू बेहोश हो जाता है। हैनिबल को लगता है कि शायद वो मर गया है। जैसे ही वो उसके पास आता है वो बच्चा उसे निगल लेता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो कि अपने बचे हुए 2 रोबोट्स के साथ अपने प्लान को अंजाम देना चाहते हैं, यानी कि वो उस दरार में जहां से काइजू बाहर आया करते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता है, उस दुनिया में एटम बॉम्ब फेंक कर उसे तबाह करना चाहते हैं। पर मार्शल को इस बार खुद ही रोबोट में को पायलट बनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो दूसरा को पायलट होता है वो बहुत ही जख्मी है। इसीलिए अब राइली और मार्शल दोनों के रोबोट जाते हैं जहाँ पर वो दरार है जहाँ से वो काइजू बाहर आया था। वहीं दूसरी तरफ न्यूटन और उसके एक साथी को दिखाया जाता है जो कि काइजू के उस बच्चे के दिमाग से जुड़ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाती है कि मार्शल का जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरी दुनिया का जो रास्ता है वो सिर्फ काइजू के लिए ही खुल सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दोनों रोबोट उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ से काइजू ऊपर आते हैं। वहाँ पर पहले से 2 काइजू मौजूद होते हैं। न्यूटन दोनों रोबोट को ये पैगाम भेज देता है कि ये लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ काइजू के लिए ही बना है। और अब अंदर से एक और काइजू बाहर निकलता है और ये कैटेगरी 5 का होता है, यानी कि अब तक का सबसे खतरनाक काइजू, और वो माको और रैली के रोबोट पर हमला कर देते हैं, जिससे कि वो उनका हाथ भी तोड़ देते हैं, लेकिन ये अपनी तलवार से इनके जिस्म को फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो कैटेगरी 5 का रोबोट होता है वो मार्शल के रोबोट पर हमला कर देता है। वो कुछ ही देर में उनके रोबोट को गिरा देता है, पर मार्शल भी उसे काफी जख्मी कर देता है। कैटेगरी 5 का काइजू अपने पार्टनर को आवाज लगाता है
है। और जब वो दोनों काइजू उसके रोबोट की तरफ आ रहे होते हैं तो मार्शल रैली से कहता है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने काम को अंजाम देना होगा। और जैसे ही वो दोनों काइजू उस तक पहुंचते हैं तो वो अपने रोबोट में मौजूद एटम बम को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि उन दोनों की मौत हो जाती है। रैली और मार्शल उस काइजू की लाश, जिसे इन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी तलवार से जख्मी किया था, उसे वो लोग घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी इनके सामने एक और काइजू आता है जो कि कैटेगरी 5 का ही होता है, लेकिन ये अभी तक जिंदा होता है। और रैली और माको का रोबोट अब काफी जख्मी था, पर वो फिर भी अपने सूट की पूरी पावर को यूज करते हैं और उसको पकड़कर उस खाई में गिर जाते हैं, जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता है। इन दोनों के बीच कूदते हुए भी लड़ाई होती है, पर रैली और माको अपने प्लाज्मा पावर से उसको मार देते हैं। और जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और ये दोनों दरवाजे के अंदर गिरने लगते हैं। माको का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, इसीलिए रैली उसके कैप्सूल को सरफेस पर ले जाता है। और जब वो उस दूसरी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसने उस बॉम्ब को ब्लास्ट करना था, तो तब एलियन उन्हें देख रहे होते हैं, मगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था तो तभी रैली अपने कैप्सूल को रिलीज कर देता है और इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि एलियन की सारी दुनिया और वो दूसरी दुनिया का दरवाजा भी, जिससे कि वो एलियंस और काइजू इस दुनिया में आते थे, वो भी तबाह हो जाता है। और एंड में दिखाया जाता है कि रैली और माको अपने अपने कैप्सूल में पानी की सरफेस पर आ चुके हैं और वो सेफ हैं। इन दोनों की जान बच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।